That's a good part. And one more major important thing which he conveys and talks is about Gita. So there are sessions and investment sessions which he conduct with the learnings of Bhagavad Gita also. I think that he is specializing himself in last few years, and that has come up really well. So I also encourage Saurabh to write investments and Gita, a book on that, so that no, that also becomes little more highlighted with everyone. Sure. Over to you. जी. तो good evening, all dear friends. I hope my voice is audible very, very clearly. Yes, fantastic. So, our session is about 7 stories for a killer IP, and Hindi, English, both is fine. Yeah, you want me to stick to any one language? Both is fine. Fantastic. Great. तो जैसे अभी कनक जी ने बोला कि किलर आईपी के लिए, अभी किलर मतलब किसको किल करना है? ऑब्वियसली इन्वेस्टर को या ऑडियंस को तो किल नहीं करना है। तो इसलिए हम लोग जो किल कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? ये किल हम कर रहे हैं उसके मन के जो डाउट्स हैं, उनके मन में जो संदेह है, उनको हम किल कर रहे हैं, उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको किल कर रहे हैं। तो to start with, a few questions I would like to ask. How many of us are doing IAPs as of now? अच्छा, निशान जी इज डूइंग। सॉरी, मुझे सारे लोग एक साथ तो नहीं नजर आ रहे हैं। चल रही। हाँ, अब नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश जी इज ऑल्सो डूइंग। तो सर, जो आईआईपी आप करते हैं, आपको क्या लगता है व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज वी फेस इन डूइंग एन आईआईपी? अटेंडेंस। अटेंडेंस, ओके। तो अटेंडेंस इज डेफिनेटली अ चैलेंज। तो कितने लोगों के आईआईपी आपको लगता है कि आप करना चाहते हो, और कितने लोग आते हैं, ऐसा कुछ होता है? बेसिकली लोग आना ही नहीं चाहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आई एग्री, आई एग्री। तो दैट इज अ बिग चैलेंज। तो लेट अस से कहीं से जुगाड़ करके, मान लीजिए कोई कॉरपोरेट्स में या किसी हाउसिंग सोसाइटी में या कहीं भी, अगर एक 25-30 लोगों का या 50 लोगों का जो भी है, अगर क्राउड इकट्ठा हो जाए, देन व्हाट इज द नेक्स्ट चैलेंज? क्योंकि गेटिंग पीपल इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, वो तो है ही। What is the other challenge that we face? If any one of us are doing IPs, I can see some people writing in chats. Okay, great convincing pitch. Shweta ji is writing. So great. What do you would you like to elaborate, Shweta ji? What do you mean by great convincing pitch? What exactly do you mean by that? आप चाहे तो अनम्यूट करके बोल सकती है। डू दे हैव दैट ऑप्शन, कनक जी? Yes, I can unmute. Yes, please. Yeah, Hi, thanks, Saurabh. Yeah. So for me, I feel like the first challenge, as Nishan told, like getting people. I do online only masterclass, and 1, 2, 3, 4, 5 people turn up every week. Not much, sometimes zero. I'm going to start offline IAP, but the thing that is concerning is first, obviously, getting people to attend IAP. Second one is like because nobody wants to listen to the poor, like everyone know emergency fund, insurance, mutual fund. So how we convince them, like what pitch should we bring to them that brings them the fresh perspective, not making them feel like they don't know anything, because nobody wants to buy from the person who just make them realize that they don't know, or like mainly we can like get to their pains or aspirations, or how we can like convince them what is our value in that IAP, not just like telling about mutual fund, equity, this option, that option. So like convincing pitch for me is like matlab, where someone can even trust us, or like as a person who knows something get greater than them, because now information is available everywhere. You can just it's not like people don't know about product. Most of the people, they know, they are doing mutual fund, they are doing SIP, they are doing stocks, but how can we convince them or ask them the questions they feel, oh, with professional their journey can be more peaceful, more better, or they realize in our IAP that thing, not like, oh, this is important, that is important.
फैंटास्टिक। सो आपने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर फेसिंग द सिमिलर चैलेंजेस दैट इवन इफ वी आर एबल टू गेट पीपल, तो उनके लिए हाउ टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग रेलेवेंट, ये कैसे बनाए सो दैट उनको लगे कि वी आर द राइट पीपल टू गाइड देम एंड हेल्प देम। एंड दिस इज व्हाई वी डेवलप्ड दिस प्रोग्राम, जिसको हमने देखा कि हाउ मेनी ऑफ अस लव टू लिसन टू स्टोरीज। Yeah, me, I think everyone loves to एवरीवन know लव्स। the तो story. हाँ, तो जैसे कि एमएफडीज को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, हमारे क्लाइंट्स को भी स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। और हम जब ये बोलते हैं कि सर इस आईआईपी में आपको हम जरा भी ज्ञान नहीं देंगे, इस आईआईपी में हम आपको कुछ मजेदार सी स्टोरी सुनाएंगे, और उन स्टोरीज के द्वारा फिर यदि आपको जो भी समझ में आए वो समझ में आए, जो नहीं समझ में आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो दैट इज द होल आइडिया। सो इसलिए मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आप लोगों से लेना चाह रहा था। तो let's get into the PPT. I'll just start sharing my screen. Is my screen visible? Yes. Okay, great. क्या क्या या स्क्रीन आया नहीं अभी तक। हाँ, यहाँ पे। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? या नाउ Yes, yes, it's visible. यस। You can तो see. बेसिकली हम लोग दो ही चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ आईआईपी, जो आप लोग वैसे जानते हो, बट जो थोड़े से इंसाइट्स मेरे पास हैं, क्योंकि मुझे लगता है एक अराउंड 100+ आईआईपीज कुछ हो गए होंगे मेरे। तो उनसे जो भी मैंने सीखा है कि व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी केप्ट इन माइंड, तो वो मैं आपसे कुछ शेयर कर लूंगा। एंड देन ऑफ कोर्स 7 स्टोरीज तो हमको करनी ही है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एन आईआईपी। तो हम लोग अपने क्लाइंट से 1-to-1 मीटिंग तो करते ही हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप एक क्लाइंट से 1-to-1 मीटिंग करते हो, तो कितना टाइम आपको लगता है आपको देना पड़ता है? हाउ लॉन्ग डज द मीटिंग गो इन जनरल? to 1 hour. 1 आवर देना पड़ता है। तो इसी 1 आवर में अगर आप एक क्लाइंट से बात करने के बजाय अगर 10 लोगों से, 15 लोगों से, 20 लोगों से बात कर पाओ, तो डू यू थिंक इट विल मेक मोर सेंस ऑफ योर टाइम? Of course. है ना? तो दैट इज द आइडिया। हम लोग को सबसे पहले तो आईआईपी के लिए माइंड से निकाल देना है कि व्हाट इज द एम्फी डेफिनेशन ऑफ आईआईपीज। एम्फी बोलता है 20 से कम लोग रहेंगे तो मैं उसको आईआईपी नहीं बोलूंगा। बट हमारे लिए ऐसा नहीं है। हमारे लिए अगर वो 10 लोगों का भी आईआईपी होता है, आपके लिए 1 घंटा इन्वेस्ट करने से अगर इफ यू आर एबल टू टॉक टू 10 पीपल, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। सो आई वुड सजेस्ट प्लीज स्टार्ट डूइंग आईआईपी इन स्मॉलर नंबर्स। 5 लोग, 10 लोग भी अगर आपको मिलते हैं, प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट। डोंट इन्वॉल्व एएमसीज इनटू इट। मतलब एएमसीज को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मिलते हैं, बड़ा नंबर होता है तो इट इज ओके। अदरवाइज प्लीज कीप डूइंग योर 5-10 का आईआईपीज, इट विल वर्क वंडर्स। सेकंड है, आप जब एक आईआईपी करते हो, अच्छा, आप जब एक बंदे से बात करते हो एक कमरे में, तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि उसको लगे कि यार ये बंदा जो बोल रहा है ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है? आई वुड रिक्वेस्ट इफ वी कैन इंटरेक्ट, क्योंकि सेशन हमारा बहुत इंटरेक्टिव है, मुझे आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है। तो दैट इज हाउ इट इज। तो अगर आप लोग बातचीत करते रहेंगे, रिप्लाईज करते रहेंगे, तो इट विल बी मच हेल्पफुल। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप किसी एक बंदे से एक उसके हॉल में बैठ के बात कर रहे हो, उसके ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हो, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि उसको लगे कि ये जो मेरा एमएफडी बोल रहा है ये सच भी हो सकता है और झूठ? अच्छा, तो देर इज नो आंसर। सो मैं मेरे एंड से इतना बता सकता हूँ कि मेनी टाइम्स द क्लाइंट कैन फील कि भाई ये जो भी बोल रहा है हो सकता है सच हो सकता है झूठ भी हो। लेकिन द मोमेंट यू डेयर टू टॉक इन फ्रंट ऑफ 10 पीपल, यू डेयर टू टॉक इन फ्रंट ऑफ 20 पीपल, तो अचानक से आप एक अथॉरिटी की तरह सामने आ जाते हो। क्योंकि वो क्लाइंट को लगता है, जितने लोग बैठे हैं उनको लगता है हो सकता है मुझे पता नहीं हो, लेकिन बचे हुए तो किसी न किसी को पता होगा। आज अगर ये बोल रहा है कि इक्विटीज में रिटर्न्स आते हैं या स्टॉक मार्केट आगे बढ़ता है या कुछ भी होता है, तो किसी न किसी को तो पता होगा। तो आपकी एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश होती है। तो दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ डूइंग एन आईआईपी। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन डूइंग एन आईआईपी? तो जैसे कि निशांत जी ने सबसे पहले बोला कि गेटिंग ऑडियंस इज डेफिनेटली अ चैलेंज। तो वो वहां पे तो हमें काम करना ही पड़ेगा कि हाउ टू गेट पीपल।
सेकंड इज डिलीवरिंग रेलेवेंट नॉलेज। हम आईआईपी में इधर उधर की बातें करेंगे, कोई सेंस नहीं है, यू हैव टू टॉक रेलेवेंट। लेकिन रेलेवेंट का मतलब बोरिंग डेटा प्रेजेंट करेंगे तो उसका भी कोई सेंस नहीं है। वी हैव टू कीप द ऑडियंस एंगेज। अभी एंगेज कैसे रखेंगे? अब जैसे कनक जी ने तो बहुत सारे गेम्स हमको सजेस्ट किए हुए हैं, उन गेम्स के थ्रू आप कंटिन्यूसली अपने ऑडियंस को एंगेज रख सकते हो। दैट इज वन डेफिनेटली अ गुड आइडिया। सेकेंड कुड बी टेलिंग सम स्टोरीज, जिसके बारे में हम आज बात करें। नाउ ये एक स्लाइड को थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल एंगल से आप देखिएगा, हालांकि इसमें पॉलिटिकल इमेजेस यूज किए गए हैं, लेकिन इसको हम एज अ फन यूज करने वाले हैं। कि हमारे जो एक अमित भाई हैं वो फोन करते हैं शशि थरूर जी को। शशि थरूर जी किस चीज के लिए फेमस है? इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत उनकी इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड है, ऐसा बोला जाता है। तो जब इन्होंने फोन किया अमित भाई ने कि भाई, और ये बाय द वे ये रियल नहीं है, ये सब जोक्स है, तो प्लीज इसको जाके कल के दिन कहीं छाप मत दीजिएगा। तो अमित भाई ने फोन किया कि शशि थरूर को कि भाई क्या आप बीजेपी ज्वाइन करना चाहोगे? तो जो शशि थरूर जी ने उनका जवाब दिया वो आप पढ़ सकते हैं। कितने खतरनाक खतरनाक शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, विथ रिकम्पेंस ओबीसेंस टू ए प्रोपाउंडमेंट विथ, है ना, ऐसे सब खतरनाक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। तो अमित भाई लास्ट में परेशान हो गए, भाई तू या तो हाँ बोल या ना बोल। इससे क्या समझ में आया आपको? व्हाट इज दिस जोक ट्राइंग टू टेल अस? सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं? Use यानी easy आपका language नॉलेज, that हाँ, आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए। आप भले बोलोगे शशि थरूर की इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन अमित भाई को अगर उनकी बात समझ में नहीं आई है कि भाई कहना क्या चाहते हो, तो इट इज नॉट मेक एनी सेंस। और हमारे कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसा होता है जब आईपी खत्म हो जाता है कि समझ में कुछ नहीं आया लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा। तो आपको उनको सिर्फ इंप्रेस नहीं करना है, उनको आपकी बात समझ में आनी चाहिए, ओनली देन इट मेक्स सेंस। एंड दैट इज वेयर वी आर ट्राइंग टू टॉक रेलेवेंट थिंग्स टू देम। तो हम लोग अगर इस स्लाइड को एक बार अगर मैं साइड में रखूं, तो आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स के क्या कंसर्न होते होंगे? व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ इन्वेस्टर्स? मेनली इन्फ्लेशन मेनली। इन्फ्लेशन, ओके। I feel it's more of consistent savings. Okay, how ओके। much will this month I will be able to save? That is also one challenge. And ओके। obviously, like the concern is inequity because returns are not guaranteed. What is the probability I'll get the best fund? That is also one thing. फैंटास्टिक। तो कैन वी से कि यहाँ पे जो भी स्लाइड पे लिखा हुआ है, दीज आर सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट कंसर्न्स ऑफ आवर क्लाइंट्स? Yes, of course. है ना, ये कंसर्न हमारे क्लाइंट्स के हैं और आप लोग इन कंसर्न्स को हैंडल भी कर रहे हो। बस आज एक चेंज हम करने वाले हैं कि ये सारे कंसर्न्स को हम ज्ञान देने के बजाय हम लोग स्टोरीज के थ्रू हैंडल करने। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू दो स्टोरीज नाउ। तो जो पहली स्टोरी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ पावर बैंक। तो अब अभी तक मैंने आपको जो दिखाया, ये मैं आप लोगों से बात कर रहा था एज एन एमएफडी, एज माय फेलो वोलेटिलिटी कोचेस। अभी अगली स्लाइड से मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, या इस स्लाइड से जो दिखाने जा रहा हूं, दिस इज माय एक्चुअल पीपीटी जो मैं इन्वेस्टर्स के साथ में करता हूं। तो अब अगले 45 मिनट्स के लिए आपको अज्यूम करना है कि आप लोग मेरे आईपी में आए हुए इन्वेस्टर्स हो। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप लोग एमएफडीज हो। ठीक है, क्योंकि अब आपको मुझे उसी तरह से सुनना है, या उसी तरह से सवाल करने हैं, या उसी तरह से जवाब देने हैं जैसे आपके इन्वेस्टर्स या आपके ऑडियंस आपको जवाब देने वाले हैं, है ना। अभी आप नॉलेजेबल एमएफडी की तरह सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, इसमें क्या बड़ी बात। लेकिन आपको एक लेमैन इन्वेस्टर की तरह सुनना है जो फर्स्ट टाइम एक आईआईपी अटेंड करने के लिए आया हुआ है, और उस तरह से जवाब देना है। यू विल ऑल्सो एंजॉय दिस सेशन एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू कंडक्ट दिस सेशन इन अ सिमिलर वे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि हम में से कितने लोग पावर बैंक यूज करते हैं? एवरीवन। एवरीवन इज यूजिंग पावर बैंक। तो जिन्होंने बोला है सर जी, अगर आप शेयर करना चाहें क्यों पावर बैंक यूज करते हैं आप? व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग अ पावर बैंक? इमरजेंसी प्लानिंग, बाहर जा रहे हैं और मोबाइल लेकर कहीं बैठा हूँ, वहां पर हर जगह चार्जर मिलेगा नहीं, तो पावर बैंक रखना पड़ता है कि ताकि वो लग जाए, अपना काम चलता रहे। फैंटास्टिक। अच्छा, तो क्या इस पावर बैंक को भी चार्ज करते रहना पड़ेगा, या उसमें कुछ मैजिक है कि वो अपने आप ही आ जाएगी उसमें पावर? नेचुरली चार्ज करते रहना पड़ता है। चार्ज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसी तरह ये हमको एक जो पैरेलली
हम बोलते हैं इसका पैरेलल एग्जांपल ड्रॉ कर सकते हैं अपनी रिटायरमेंट के साथ में। तो अच्छा, एक यदि मैं आपको ऑप्शन दूं कि आपको पावर बैंक यूज नहीं करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू गो बैक टू द नोकिया 1100 फोन। नोकिया 1100 में पावर बैंक यूज करना पड़ता था क्या? उसकी बैटरी चलती उस थी टाइम पे 3 दिन पावर तक बैंक का चलती थी। कंसेप्ट ही नहीं था ऐसे तो। और नहीं, कंसेप्ट नहीं नेचुरली था। उतना जल्दी कंसेप्ट ड्रेन इसलिए आउट नहीं भी था नहीं क्योंकि होता था। जरूरत नहीं थी। जरूरत जरूरत, नहीं पड़ती थी, एक ही हफ्ता चल जाता था वो। आज तो एक बार एग्जैक्ट, में 2 बार चार्ज करना पड़ता है एक दिन में। जी बिल्कुल सही। तो ये उस टाइप के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स, जो यंगस्टर क्लाइंट्स बोल लीजिए या जो मिडिल एज क्लाइंट्स है, वो बोलते हैं कि हमारे दादाजी ने तो कभी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की, लेकिन उनकी रिटायरमेंट तो बड़ी आराम से कट गई, हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करने की क्या जरूरत है। तो उसके लिए हम लोग ये स्टोरी बताते हैं कि जो आपके दादाजी की लाइफ थी, वो थी बिल्कुल एक नोकिया 1100 के फोन की तरह। क्योंकि जब वो दादाजी जो हैं वो कभी पानी की बोतल खरीद के पानी पीते थे क्या? नहीं पीते थे। और अगर उनको घूमने जाना होता था तो कहाँ घूमने जाते थे और कहाँ रहते थे? Mostly temples, all this मोस्टली रिलीजियस ट्रिप्स पे historical जाते थे, places. वहां पे धर्मशाला वो सब में रह जाते थे। अभी आप जब घूमने जाते हो तो आप कहाँ घूमने जाते हो और कहाँ रहते हो? To stay, of course, we go into a hotel. है ना, 5 स्टार होटल चाहिए, स्विमिंग पूल होना Yeah, चाहिए, three उसमें star, दुनिया five भर star की सब hotels. फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो हमारे दादाजी की जो लाइफ थी वो हमारे नोकिया 1100 फोन की तरह थी, बड़ी सिंपल सी लाइफ थी। इसलिए अगर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग ना भी की हो और बहुत हम्बल सा उनको रिटायरमेंट फंड मिला हो, तो उसमें वो अपनी जिंदगी निकाल सकते थे। बट व्हेन इट कम्स टू अस, वी हैव लॉट ऑफ लाइफस्टाइल्स जो आज भी हैं और हम चाहेंगे कि अपने रिटायरमेंट के बाद भी करें। अच्छा, आज अगर हम बॉटल खरीद के पानी पी रहे हैं तो अपनी रिटायरमेंट में टैप वाटर पी लेंगे क्या? रिटायरमेंट पे भी हमको पानी की बोतल ही खरीदनी होगी। इनफैक्ट हो सकता है आज से थोड़ी महंगी खरीदें हम। ठीक है। आज अगर हम 5 स्टार में रह रहे हैं तो रिटायरमेंट के बाद में सडनली धर्मशालाओं में रह लेंगे विदाउट नॉन एसी रूम्स में? नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमारी लाइफ जो है, इट इज लाइक अ स्मार्टफोन लाइफ, जिसमें दुनिया भर के एप्स चाहिए, सब चाहिए। और आपका स्मार्टफोन जो है उसके अंदर बाकी तो सब फीचर्स बड़े अच्छे होते हैं, एक उसका बड़ा खराब फीचर है कि उसकी बैटरी बड़ी जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है। और उसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको चाहिए एक पावर बैंक। और उसी तरह आपको चाहिए एक रिटायरमेंट फंड अपने लिए। क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तब ये आपका पावर बैंक जो है ये आपको आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए आता है। और जैसे ही आपकी इनकम बंद होती है, इट इज लाइक वो इलेक्ट्रिसिटी करंट हैज गॉन। Now the retirement fund, which is your power bank, is coming to your rescue. Now it is charging your smartphone. That is your life. That is your featureful life. आपकी लाइफ में जो भी फीचर्स हैं, आपकी लाइफ में जो भी लग्जरीज आपको चाहिए, ये कहाँ से आएंगी? ये लग्जरीज आने के लिए आपका पावर बैंक फुल्ली चार्ज होना चाहिए। एंड दिस पावर बैंक इज नथिंग बट योर रिटायरमेंट फंड। इसके लिए द मैसेज इज स्टार्ट सेविंग फॉर योर फ्यूचर। आज के जो जेंजीज हैं, जो कई बार बोलते हैं कि लिव लाइफ किंग साइज, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आज ही सारा पैसा खर्च कर दो, हम उनको यही बोलते हैं कि बेटा आज तो सारा पैसा खर्च कर दोगे, लेकिन क्या यही लाइफस्टाइल आज आप अपने फ्यूचर में भी करना चाहोगे? और एक सवाल हम और उनसे पूछते हैं। तो वो सवाल मैं आपको एज एन इन्वेस्टर आज पूछता हूँ। चलिए निशान जी से पूछ लेता हूँ मैं। निशान जी, आप काफी यंग लग रहे हो मुझे। यू आर 1 और 2? 1 और 2 मतलब? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर निशांत जी, राज इसका मतलब एक वो है या दो सिंगल है। हैं? निशांत राज एक है या दो हैं? एक है। एक है। मैं बोला मैं ना सर। बोलूंगा सर दो हैं। वन इज द प्रेजेंट निशांत राज एंड सेकंड इज द फ्यूचर निशांत राज। और ये जो फ्यूचर निशांत राज हैं, ये प्रेजेंट निशांत राज से थोड़े से कम एक्टिव होंगे, कम एनर्जेटिक होंगे और थोड़ा सा रेस्ट करना चाहेंगे। तो उन निशांत राज को खर्चा करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए कौन आएगा? जो मैं सेविंग्स होंगी वही आएंगी। तो ये जो प्रेजेंट निशांत राज है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक ऐसा पावर बैंक चार्ज करके रखे ताकि जब फ्यूचर निशांत राज आए तो उनकी लाइफ में भी उतने ही फीचर्स हो, उतने ही एप्लीकेशंस हो, उतने ही एंजॉयमेंट हो। तो इसके लिए आपको अपनी सेविंग करनी जरूरी है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टोरी जिसके थ्रू हम अपने क्लाइंट्स को इंपॉर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट सेविंग बताते हैं। यहाँ पे हमने उनको पावर बैंक से रिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए।
दूसरे में आते हैं इन्फ्लेशन बीटिंग। अभी इन्फ्लेशन का नाम लेते ही आरबीआई और ये सब भयंकर भयंकर वर्ड्स आ जाते हैं सामने, और ये हमारे क्लाइंट को समझ में नहीं आते हैं। तो हम उनके साथ एक गेम खेलते हैं छोटा सा, फिफ्थ ग्रेड मैथमेटिक्स का। आई होप हम सबके पास में एक एक पेपर एंड पेन होगा। ठीक है। Yes. तो एक छोटा सा सवाल फिफ्थ ग्रेड मैथमेटिक्स का पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। एज एन इन्वेस्टर, एज एन एमएफडी सॉल्व मत करना इसको, एज एन अपने इन्वेस्टर की तरह सॉल्व करना, या आई विल से फिफ्थ ग्रेडर बच्चे की तरह सॉल्व करना इसको आप। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन इस तरह है, देर इज अ वेल। वेल देखा आप लोगों ने, कुआं? Yes. फैंटास्टिक। अभी इस कुएं के जो बॉटम है वहां पे एक चींटी है। इसको थोड़ी देर के लिए एक चींटी समझ लीजिए आप, मेरे ड्राइंग स्किल्स इतने ही थे। तो ये चींटी है, ये कुएं की जो डेप्थ है वो 10 मीटर्स है, और ये चींटी है। ये चींटी जो है ये इसकी कैपेसिटी है, ये हर दिन ना सिर्फ 4 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ सकती है, उतनी ताकत है इसकी। अभी जो कुएं की इनर वॉल्स हैं ये स्लिपरी हैं। आपने देखिए कुएं की इनर वॉल स्लिपरी होती है थोड़ी सी, है ना? Yes. स्लिपरी है। तो ये जो चींटी है ये नीचे फिसल जाती है हर दिन 6 सेंटीमीटर। अब आपको कैलकुलेट ये करके बताना है मुझे कि ये कितने दिनों में चींटी कुएं से बाहर आएगी। आप लोग अपने कैलकुलेटर्स का, मोबाइल कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल कर सकते आएगी नहीं। Right. हैं। रामा रेड्डी जी बोलते हैं आएगी नहीं सर, ऐसे मत करिए, चींटी पे थोड़ी दया कीजिए, बाहर लाइए उसको, थोड़ी तो कोशिश तब कीजिए। डालना पड़ेगा हमें खुद। चलिए, एनी अदर आंसर? अपने इन्वेस्टर की तरह सोचिए सर आप। दीपक जी क्या लगता है आपको? सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर। हाँ सौरभ सर, बिल्कुल सिंपल है, बताइए। 4 सेंटीमीटर की जगह ना 8 सेंटीमीटर कोशिश करनी है बस। अच्छा, तो सर वो तो सेकंड स्टेप हो गया। फिलहाल जो उसकी ताकत है उसमें कितने दिनों में बाहर आ पाएगी वो? नहीं सर, बाहर कहाँ से आएगी वो? 4 सेंटीमीटर ऊपर जा रही है और 6 सेंटीमीटर नीचे जा रही है, तो फैंटास्टिक, फैंटास्टिक सर। तो क्या आपको लगता है कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसी तरह के जवाब दे देंगे आपको? Yes. दे देंगे ना? ये तो फिफ्थ ग्रेड मैथ्स है, इसमें कोई मतलब है ना, बहुत हाई फाइनेंस का सवाल नहीं पूछ लिया मैंने, ये फिफ्थ ग्रेड मैथ्स है। तो आपके इन्वेस्टर्स भी बोलेंगे कि हाँ ये चिट्टी कभी बाहर नहीं आ सकती है। नाउ द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक हियर इज, इस सवाल का जवाब तो हमने सबने बड़ी आसानी से दे दिया और सब लोग इसमें पास भी हो गए, बट एज अ कंट्री वी हैव फेल्ड इन दिस क्वेश्चन। डू यू नो क्यों? वो 4 सेंटीमीटर अपना ग्रोथ है, 6% इन्फ्लेशन है। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। हमारा पैसा हर साल 6% से नीचे गिर रहा है, और हम उसको रख रहे हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में जो 4% दे रहा है, और फिर हम सोचते हैं कि हमारा वेल्थ क्रिएशन क्यों नहीं हो रहा है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाई वी आर नॉट एबल टू क्रिएट वेल्थ एज अ कंट्री, है ना? एज अ कंट्री हम पुअर क्यों रह गए? क्योंकि हम अपने इन्फ्लेशन को ही नहीं बीट कर पाए। हमारे पैसे की ताकत कम हो रही है और हम उसको बढ़ा नहीं पा रहे। और संजीव भाई ने बिल्कुल सही कहा कि यदि इस चींटी को बाहर निकलना है तो उसको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। 4 की जगह 8 सेंटीमीटर, या एटलीस्ट 6 से ज्यादा। वो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, बट इन्फ्लेशन को बीट करना पड़ेगा। अब यही चीज करनी है हमको हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ में। अगर हम हमारे पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इन्फ्लेशन से कम रिटर्न्स बना रहा है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो, इवन फिक्स डिपॉजिट से, कोई लोग बोलेंगे कि नहीं हम सेविंग्स अकाउंट में तो नहीं रखते, हम लोग एफडी करते हैं। एफडी में कितना रिटर्न मिल रहा है उसको? 7%, चलिए 6%. 7 मान लेता हूँ। नहीं, पोस्ट टैक्स तो उतना ही है आलू। एग्जैक्टली 7% जो मिल रहा है उसमें निर्मला ताई भी तो ले जाती है पैसा। हाँ हाँ। तो निर्मला ताई का पैसा ले जाने के बाद में वही 4 साढ़े 4 बचा आपके पास में। मतलब आपकी चीटी तो अंदर ही रह गई, आपकी चीटी बाहर तो नहीं आ पाएगी। तो अगर चीटी को बाहर लाना है तो आपके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हैज टू बीट इन्फ्लेशन, एंड इफ देयर इज वन एसेट क्लास दैट कैन डू दैट इज योर इक्विटी। इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट, हम उनको ड्राइव करते हैं कि इन द लॉन्ग टर्म अगर आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आफ्टर टैक्स शुड बीट इन्फ्लेशन, तभी जाके आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे।
अगर आप ये नहीं कर पाते, आप वो नहीं कर पाते हो, तो आपकी वेल्थ क्रिएशन कभी भी नहीं होगी। तो आप देखेंगे एक छोटे से गेम के जरिए, एक छोटे से मतलब मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछ के इन्फ्लेशन जैसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हम उनको बहुत ही आसानी से बता पा रहे हैं। चलिए, ये आपको लगता है कि एक सवाल होता होगा अपने क्लाइंट्स के मन में कि नहीं होता होगा? Definitely. ये बर्निंग क्वेश्चन है सर, मतलब नेशन वांट्स टू नो वाला क्वेश्चन है ये तो। आप Yes. गूगल पे जाके देखेंगे ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया, विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अभी जैसे दिसंबर आता है, लोगों का चालू हो जाता है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन 2026, बेस्ट फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2026, बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन 2026। ये हाईएस्ट, सबसे ज्यादा सर्च होते हैं क्वेश्चंस। बेस्ट Yes. मोबाइल ज्यादा नहीं पूछेंगे लोग, लेकिन बेस्ट फंड जरूर पूछ लेते हैं। सो दैट इज द बर्निंग क्वेश्चन द नेशन वांट्स टू नो। तो आई एम श्योर आप लोगों को भी इस टाइप के क्वेश्चन लोग पूछते होंगे। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसका जवाब क्या है, इसका जवाब कैसे देंगे? So the best investment depends on the purpose, why you want to do the investment. Is it for your wealth creation? Is it for your emergency? Is it for like, what is the goal? What is the purpose behind this फैंटास्टिक। money? अभी ये आपने जवाब दे दिया बिल्कुल एमएफडी की तरह। अब हम इसको लेके जाते हैं हमारे इन्वेस्टर के लेवल पे। तो मैं इसका जवाब देने से पहले इन्वेस्टर से एक सवाल पूछता हूं, जो आप लोगों से भी पूछूंगा। आपके हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? ट्रेन। ट्रेन, ओके। Private jet. प्राइवेट जेट, श्वेता जी तो अमीर लग रही हैं काफी, ठीक है, प्राइवेट जेट से ट्रैवल करती हैं। ट्रेन, प्राइवेट जेट, और कुछ? क्वेश्चन क्या है सर आपका? मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू यू? तो नीड के हिसाब से है सर। आप मुझे अगर पड़ोसी के घर पे जाना है, तो मैं जेट में थोड़ी ना जाऊंगा, पैदल ही जाऊंगा। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, दैट्स द आंसर सर। तो आपका बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो हमेशा आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। आपको अपने पड़ोसी के घर जाना है तो प्राइवेट जेट या ट्रेन लेके नहीं जा पाओगे, और आपको इंडिया से दुबई जाना है तो पैदल नहीं जा पाओगे, है ना? तो आपका बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमेशा डिपेंड करेगा कि कितना आपको ट्रैवल करना है। और उसी तरह आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट इस बात पे निर्भर करेगा, किस बात पे निर्भर करेगा? सिलेक्शन ऑफ व्हीकल। नहीं, सिलेक्शन ऑफ व्हीकल तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। आपका Need. सिलेक्शन ऑफ Why you are इन्वेस्टमेंट investing, your goals. गोल्स। आपके गोल्स पे एंड योर टाइम होराइजन। आपका गोल क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है? अगर आपको पैसा कल लगने वाला है, तो भाई अच्छा है कि इन्वेस्ट ही मत करो ना। एक दिन के लिए क्या इन्वेस्ट करके कौन सी तीर मार लोगे? अनलेस यू आर इन्वेस्टिंग 200-400 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो बात अलग है। बट अगर आप 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक दिन के लिए इन्वेस्ट करके कोई सेंस नहीं है। बेटर है कि अपने पास ही रखो। अगर आप 1 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, देर विल बी अ डिफरेंट प्रोडक्ट। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, देर विल बी अ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो इस टाइप से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेस्ट करोगे डिपेंडिंग ऑन योर टाइम होराइजन। सो देर इज नो यूनिफॉर्म आंसर टू दिस। ये आपको अपने क्लाइंट्स को समझाना है। चलिए, एक ऑब्जेक्शन मुझे लगता है हम लोगों के पास आता होगा, काफी लोगों के पास, आपके पास भी आता होगा। अगेन, अपने इन्वेस्टर बन के बात कीजिएगा। एज एन एमएफडी आपको इसका आंसर पता है, लेकिन आप अपने आप को अज्यूम कीजिए कि आप अपने इन्वेस्टर हो, और तब इसका आंसर क्या दोगे। तो हम में से कई लोगों को यह भ्रम होता है कि प्रॉपर्टी इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आता है आपको क्वेश्चन अपने कई सारे इन्वेस्टर्स के साथ Yes. बहुत कि बहुत भाई, ज्यादा। बहुत ज्यादा आता है कि भाई बातें कितनी भी कर लो, जो पैसा प्रॉपर्टी में बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता। बोलते हैं लोग हमको ये। कितना भी समझा लीजिए, वो लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे तोड़ देते हैं। अच्छा यस, खासा पैसा तोड़ देते बहुत हैं, बढ़िया प्रॉपर्टी सर। लेना है। तो आपका ये वाला जो स्टोरी है ना, ये उनको बहुत हेल्प करने वाला है। तो फिर से ये स्टोरी है 2 फ्रेंड्स के बारे में। तो एक फ्रेंड जो था वो बड़ा इंटेलिजेंट था सर। तो इंटेलिजेंट लोग तो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसने भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। तो इसने 1996 में एक प्लॉट, समझ लीजिए, अभी मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो यहाँ प्लॉट तो मिलते नहीं है, यहाँ फ्लैट ही मिलते हैं। तो उसने फ्लैट खरीद लिया था 1996 में, 10 लाख रुपए में, 1996, ठीक है। अभी भाई साहब, प्राइस बढ़ गई, आज हो गया ये प्लॉट या फ्लैट जो है 4 करोड़ का हुआ। तो 40 गुना ग्रोथ हो गई। क्या क्या बोलेंगे इस ग्रोथ को, अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे? Great. है ना, बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो यहाँ पे आपके आधे क्लाइंट्स जो है, आपके ऑडियंस है, बोलेंगे देखिए सर, मैंने बोला था ना प्रॉपर्टी में जो पैसा बनता है वो तो कहीं नहीं बनता। तो बिल्कुल, ये जो पहला दोस्त था इसका बहुत बढ़िया पैसा बन गया। अब जो दूसरा दोस्त था वो थोड़ा सा भोला भाला टाइप का ही था, वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। उसको आपके और मेरे जैसे कोई एमएफडी मिल गए, तो उसने उसको बोला कि यार एक काम करो, एक बढ़िया सा फंड ले लो आप 10 लाख रुपए का।
तो उसने उसकी बातों में आके एक 10 लाख रुपए का फंड ले लिया सर। तो आपको क्या लगता है, अभी ये जो पहले भाई साहब थे इनके तो 10 लाख के 4 करोड़ हो गए यार, तो जो दूसरे भाई साहब थे इनका क्या हुआ होगा? 7-8 करोड़। ये आप एमएफडी बन के बोल रहे हो सर? अपने इन्वेस्टर बन के बोलिए, आपके इन्वेस्टर 50 भी यही लाख हो गया बोलेंगे। होगा सर, कितना होगा? जीरो हो 50 लाख, गया, 60 लाख? जीरो हो गया बोलते हैं। जीरो भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। सो सर आई विल टेल यू, मैं जब ये आईआईपी करता हूँ आई एक्चुअली गेट आंसर्स लाइक दिस एंड आई राइट देम ऑन द बोर्ड। इफ आई एम डूइंग अ फिजिकल आईआईपी आई राइट देम ऑन द बोर्ड। कि आपको क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है कि 50, ये जो 10 लाख है ये इसका जीरो हो गया होगा? देर आर 2 और 3 पीपल जो जीरो भी बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 10 लाख का 10 ही हुआ, 10 रह गया होगा। कुछ लोग बोलते हैं 10 लाख का ज्यादा से ज्यादा क्या कर लिया होगा, 10 50 लाख लाख में। में जीरो होने की संभावना कम है ना। म्यूचुअल क्या फंड बोल रहे हैं में सर? क्या है कि, हेलो। जी बोलिए सर। हाँ सर, म्यूचुअल फंड में कोई भी पैसा लगाए जीरो हो ही नहीं सकता है ना। सर मैं वही बता रहा हूँ, आप एमएफडी बन के बात कर रहे हो, आप जो ऑडियंस होती है ना हमारी, उनके आंसर्स आते हैं इस टाइप के। और आपके लिए अगर वो आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप उनको एक ऐसी चीज बताने जा रहे हो जो उनके होश उड़ा देगी। तीन और चार आप, लाख हो सकते हैं। हाँ 3-4 लाख हो सकते हैं ऐसे। चलो 3-4 लाख, 3-4 लाख पकड़ लीजिए, तो 10 लाख थे उसके 3-4 लाख हो गए। कोई बोलता है 10 लाख के 10 लाख रह गए, कोई बोलता है 10 लाख के 50 लाख हो गए। किसी ने बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली सोच लिया तो बोलता है चलो ठीक है यार 10 लाख के 2 करोड़ हो गए होंगे और तो क्या ही कर लोगे तुम। ठीक है, क्या ऐसा कोई आंसर आपको एक्सपेक्टेड है जो बोले कि 10 लाख के 4 करोड़ से ऊपर हो गए होंगे? आपको लगता है आपके ऑडियंस में ऐसे भी कोई लोग होंगे? वेरी 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 लेस इट शुड बी। वेरी लेस, चलो एक आधा बंदा है, उसने वो क्या बोल देगा, कितना बोल देगा, आपको क्या लगता 10-20 करोड़। है? छह 10 और करोड़ पाँच बहुत फर्क होता है छह सर। करोड़ 5 करोड़। नहीं 5 करोड़ फर्क बोल है। दिया, चलो थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया है ना। द 30 से आंसर 40 इज करोड़ दिस। हो गए। निप्पॉन में लगाए होते, निप्पॉन ग्रोथ फंड में तो 40 करोड़ हो जाते। तो आपको क्या लगता है ये वाला जो फिगर है वो देख के आपके ऑडियंस की क्या हालत होगी? नहीं, but the question is in the left side that intelligent can be 10 times intelligent, 100 times intelligent also. That is the हम्म problem here. हम्म Because if someone has invested in their right time, like, nearby airport or nearby says, or maybe nearby, let's say, assuming, people compare that type of people, but they never do that type of investments. नो नो नो, तो यह आपका आपका जो ऑब्जेक्शन है वो मैं बिल्कुल हैंडल करूंगा सर। फिलहाल हम लोग इस स्टोरी के साथ रहते हैं ठीक। कि एक स्टोरी आपने जो बताई कि दो दोस्तों की कहानी है, एक का पैसा 40 गुना बढ़ा और सेम पीरियड में दूसरे का 420 गुना बढ़ा। एंड दीज आर रियल नंबर्स, ये कोई भी फज नंबर, फेक नंबर्स नहीं है। अभी एक ऑब्जेक्शन जो मुझे आता है सामने से कि सर एक्चुअल में इतना पैसा किसी को मिला क्या? क्या सही में 10 लाख का 42 करोड़ किसी को मिला इस देश में? द आंसर इज नो, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उतना टाइम इन्वेस्टेड नहीं रहता है ना होगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में 30 साल तक इन्वेस्टेड रहा जाता है, ये हमको किसी ने सिखाया ही नहीं। तो सेकंड रीजन और था कि 2009 में इस फंड के 30 लाख के 14 लाख रह गए। तो कुछ लोग 27 पे निकल लिए, कुछ 24 आपकी पे आवाज निकल लिए, बहुत 20 पे क्लियरली तो नहीं आ बचा पा ही रही सर नहीं। मुझे, क्या बोल रहे हैं? सेकंड रीजन सेकंड रीजन ये है कि 2009 में लेमैन ब्रदर्स के समय इस फंड में जो 1 लाख के 30 लाख हुए थे उसके 14 लाख रह गए थे। जी तो कुछ 27 पे निकल लिए, कुछ 24 पे निकल, 20 पे तो ये बचा ही नहीं। जी 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 बिल्कुल सही। तो मैं वही बता रहा हूं कि ये सब ही हमको हमारे इन्वेस्टर्स को बताना है। Saurabh ji, जी one more thing. If we just say, okay, now we have taken one fund and nobody knows which fund will do what, and even we don't say, okay, I'm going to give you the best fund, and there is nothing like best fund. So if we take like average return or average fund, so how much it will be? Because here also for flat we have taken average, so properties also could be like a very like you can get any amount. If we talk about like average, how much we should show, and can we show these numbers? Is it allowed in IAPs? Because we are not supposed to tell exactly the fund or tell the returns and all those things in IAPs. तो श्वेता जी मैं एक ही बात आपको पूछूंगा, फिलहाल क्या मैं कोई फंड रेकमेंड कर रहा हूँ? No. फिलहाल मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ, Yes. आप समझे? अभी जैसे वो होती है ना कछुए और खरगोश की स्टोरी, कछुए और खरगोश की रेस लगी। तो अभी क्या कछुए और खरगोश की सच में कोई रेस लगी होगी कभी? Nobody knows. Nobody knows and doesn't matter. The moral of the Yes. story is important. तो Yes. यहाँ पे what we are trying to tell them is कि
म्यूचुअल फंड में इतना ग्रोथ एक्चुअल में हुआ है, बट ये मिला इसलिए नहीं है बिकॉज म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहा जाता है। ये हमको किसी ने सिखाया नहीं है, एंड दिस इज द फाइनेंशियल एजुकेशन वी आर ट्राइंग टू इम्पार्ट हियर, है ना? लेकिन Yes. ये जो कैलकुलेशन है ये एनएवी पे ऊपर किया गया है ना सर, क्या बोल रहे हैं एक्चुअल सर? में थियोरेटिकल तो ये हुआ है ना। हाँ, तो वी आर टेलिंग देम दैट दिस इज द रियल स्टोरी। 10 रुपीज की एनएवी जो 4,000 के परफेक्ट, आगे गई तो इसका ये वैल्यू हुआ ना सर। बिल्कुल है सर, लेकिन हम कोई फंड रेकमेंड नहीं कर रहे हैं ना अभी भी। यस यस यस। Yeah. We are not recommending anything. We are telling them this is a story which is a real life story, and you tell us what is the moral of this story. क्योंकि क्या होता है कि आज आपने, मैंने, हमने सबने अपनी अपनी स्टोरी सुनी है कि ये वाला घर मैंने 10 लाख में लिया था, 4 करोड़ का हो गया, क्योंकि वो घर मैंने 30 साल तक बेचा नहीं। ये स्टोरी हर घर में है। लेकिन Yes. मैंने म्यूचुअल फंड लिया था और इतने का हो गया, ये स्टोरी हमारे पास नहीं है क्योंकि 30 साल तक हमने कोई म्यूचुअल फंड रखा ही नहीं। क्योंकि छोटी शायद बड़ी आप, कोई भी आपत्ति आए तो हम पहले सबसे पहले म्यूचुअल फंड ही तोड़ते हैं, ऐसा हो जाता है। एग्जैक्टली exactly. तो ये हम उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके प्रॉपर्टी से भी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन की ताकत एक प्रोडक्ट में है, बस हम में स्टेइंग इन्वेस्टेड की पेशेंस नहीं है। दिस इज द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू ड्राइव हियर। आगे बढ़े सर। Yes, yes. मेन इसमें चैलेंज ये आता है सर कि लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम है। हम म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट और फ्लैट का 1-1 करोड़ का, आपने 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड ले लिया, 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया, जी, फ्लैट की वैल्यू 6 महीने के बाद क्या है वो अपने को पता नहीं चलता। यहाँ पे आज लिया और कल क्या वैल्यू वो पता चलता है, तो आदमी उस कारण से वो डेली बेसिस पे देखता है, देन वो बायस हो जाता है। रेट गिर रहा था, 1 करोड़ का मेरा 99 लाख हो गया, बेच दो बेच दो। फ्लैट का रेट पता नहीं चलता है, वो बिल्कुल बढ़ता बिल्कुल रहता है। उसी बात का जवाब मैं अगली स्लाइड में दे रहा हूं सर। और मैं वही बोलूंगा, जो बात हम हमारे इन्वेस्टर्स को बोलते हैं वही हम फॉलो करें। हल्का सा पेशेंस रखेंगे, सारी सवालों के आपका जवाब मिलेगा। और मैं एक बात आपको अश्योर करता हूं, आफ्टर द सेशन इज ओवर, मतलब आफ्टर आई एम डन शेयरिंग माय पीपीटी, आई वुड लाइक टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने आईआईपी में ऑलरेडी आंसर करता हूं। सो नो, नन ऑफ योर क्वेश्चंस इज न्यू फॉर मी। सो मैं बस इतना आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उसके आंसर ऑलरेडी आ रहे हैं, दे आर ऑन देयर वे। सो जस्ट बी विथ मी, एंड आपके आंसर्स आ रहे हैं सर। तो आप जो बोलते हो कि एनएवी रोज देखने के लिए मिलता है और इसीलिए पेशेंस नहीं रहता है, हम लोग हमारे आईआईपी में ये बोलते हैं कि ये पैसा इस देश में किसी का बना क्यों नहीं, 10 लाख का 42 करोड़ क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये जिस फंड की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली उस फंड का नाम तो हम नहीं बता रहे, इस फंड ने भी पहले 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया। आप इस फंड का एनएवी जाके चेक कीजिए, इसका रिटर्न बहुत नॉर्मल सा रिटर्न था, बहुत एवरेज रिटर्न था। जाके चेक कीजिए आप, पहले 5 साल 7 साल में बहुत एवरेज रिटर्न था, और वहां पे लोग निकल गए इसमें से। आपने जो 2009 बोला, ये तो एक्चुअली बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे। पहले 5-7 साल में आधा पब्लिक, आधा क्या 99% पब्लिक गायब हो गया इस फंड में से। एंड दैट इज द होल स्टोरी, कि आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है, आपको 15 साल 20 साल देने पड़ेंगे, तब ही जाके। अच्छा, क्या आप चाहते हो कि आईआईपी के थ्रू जो क्लाइंट्स आपके पास आए वो 15 से 20 साल जुड़े रहे आपसे? Yes. यस। तो उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि पहले 5 साल में मेरा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, प्लीज मत आइए, नहीं होने वाला। कम Yes. फॉर दैट लॉन्ग टर्म, तभी जाके ये काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन आपका होने वाला है। एंड अगर आप यंग क्लाइंट्स को एड्रेस कर रहे हो, अगर आपका जो एज प्रोफाइल है दैट इज बिटवीन 25 to 40, 100% आपको ये बताना है कि सर 15 से 20 साल का पेशेंस है, तभी आइए, तभी मीनिंगफुल वेल्थ क्रिएट होगा। ये 2-4 साल के गेम में कुछ नहीं रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप में से कितने लोगों ने थाली खाई है कभी? थाली, थाली रेस्टोरेंट में जाते हैं कभी? थाली खाई Yes. है? बहुत बढ़िया सर। क्या क्या होता है सर थाली में? चलिए एक फोटो दिखा देता हूँ, इजी हो जाएगा। ऐसी ही होती है थाली आपकी? Yeah, somewhat. ओके। सो क्यों इतनी सारी चीजों की जरूरत है? कोई भी एक चीज ले लो, या तो सिर्फ दाल पी लो, या खाली गुलाब जामुन खा लो, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? सारी चीजें चाहिए। व्हाई डू यू नीड सो मेनी थिंग्स? कम ऑन, थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए। बॉडी को सब तरफ के कार्बोहाइड्रेट्स और इस मिनरल की जरूरत है। बॉडी को सब तरह के कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स की जरूरत है।
तो क्या ऐसा कोई फूड नहीं है जो जिसमें सारा कुछ हो? ऐसे बहुत कम फूड है कि जिसमें सब कुछ मिलता होगा। ऐसा उस टाइप अनफॉर्चुनेटली के कोई ऐसा कोई हैप्पीनेस। हाँ। सिंगल फूड नहीं है सर, है हम्म। ना? आपकी प्रोटीन चाहिए तो आपको दाल पीनी पड़ेगी, आपको विटामिन चाहिए तो आपको सब्जी खानी पड़ेगी, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आपको रोटी खानी पड़ेगी। तो है ना, सब सब चीजों में अपने अपने। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है हमारे साथ में कि हमको टेस्ट भी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा स्वीट भी लेना पड़ता है। तो हम हमारी थाली में इतनी सारी चीजें क्यों रखते हैं? बिकॉज नॉट एक चीज में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कभी नहीं होते। एंड सेम गोज विथ योर पोर्टफोलियो ऑल्सो। कोई भी एक चीज, कोई भी एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसके लिए आप बोल सकते हो कि ये बेस्ट है। जहां से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी, विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, देर इज नथिंग कॉल्ड एज बेस्ट। सब चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। इसीलिए हम लोग रियल एस्टेट के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रियल एस्टेट को लेके जो उनका मिथ है उसको क्लियर कर रहे हैं कि आपको रियल एस्टेट रहने के लिए चाहिए, आप जरूर लीजिए। आप म्यूचुअल फंड में जाके रह नहीं सकते हो, रहना तो घर में ही पड़ेगा आपको। लेकिन आप जो इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट यूज करते हो, वहां पे आप एक और चीज को कंसिडर कर सकते हो, विच इज द म्यूचुअल फंड, जो लॉन्ग टर्म में जिस टाइप का वेल्थ क्रिएशन आपका रियल एस्टेट में हो रहा है, उससे कहीं अच्छा वेल्थ क्रिएशन प्लस उससे कहीं अच्छा लिक्विडिटी ये आपको म्यूचुअल फंड में मिल सकता है। दैट इज द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू टेल। बट एट द सेम टाइम आपका एसेट एलोकेशन इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। हर चीज की आपके पोर्टफोलियो में इंपॉर्टेंस है। इट कैन बी इक्विटीज, इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी रियल एस्टेट, इट कैन बी कैश ऑल्सो। और ये कितना इंपॉर्टेंट है इसके ये कौन बताएगा? कौन सी चीज कितनी होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, कौन बताएगा? ये तो फाइनेंशियल एडवाइजर ही बन रहेगा ना। यस। तो आप एक बात समझिए कि आपका आईआईपी जो है, इट शुड नेवर बी अबाउट म्यूचुअल फंड्स। आपका आईआईपी ये नहीं होना चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड्स को बेचने आए हो। आप ये बताने आए हो कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपके क्लाइंट की लाइफ में आपका इंपॉर्टेंस क्या है। और ये तभी बता सकते हो जब आप एसेट एलोकेशन को भी इंपॉर्टेंट बोलो। कि सर हम नहीं बोल रहे सिर्फ क्योंकि अगर आपने बोल दिया ना कि सर बस म्यूचुअल फंड सही है, तो आपको क्या लगता है आपकी ऑडियंस क्या करेगी? बाई कर लेगी जाके म्यूचुअल फंड, है ना, फिर कंपेयर एंड आपकी बाय। जरूरत नहीं पड़ेगी ना। या अगर म्यूचुअल फंड सही है तो आपकी जरूरत नहीं है। तो यस। आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड को हीरो नहीं बताना है, आपको म्यूचुअल फंड का इक्विटी का इंपॉर्टेंस बताना है, लेकिन साथ ही साथ एसेट एलोकेशन का भी इंपॉर्टेंस बताना है। तभी जाके आपका भी इंपॉर्टेंस सामने आएगा। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दिस There is पॉइंट। nothing called as best. Different options are best for different purposes, and asset allocation is important. When you say different options are best for different purposes, तो कौन से पर्पस के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, फिर से ये कौन बताएगा? ये एडवाइजर। ये आप ही बताएंगे, है ना? तो इसीलिए हम घूम फिर के इनडायरेक्टली क्लाइंट के माइंड में प्लांट कर रहे हैं कि व्हाई आई एम ऑल्सो इंपॉर्टेंट, व्हाई आई कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक ऑब्जेक्शन, आई डोंट नो आपके साथ में आता है या नहीं आता है, ये उसको हैंडल करने के लिए है। कई लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड या इन सब में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जीरोधा का अकाउंट है, या मेरे पास कोई भी एक ट्रेडिंग ऐप है जिसके थ्रू मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मैं वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ। आते हैं इस टाइप के ऑब्जेक्शन आप लोगों को? या यस मेनी यस पीपल। आते हैं? यस, ठीक है, तो बहुत उसके सारे। लिए बहुत। बहुत आते हैं, बहुत बढ़िया से। तो इसके लिए ये वाला स्टोरी आपको बहुत हेल्प करने यूट्यूब वाला है। यूनिवर्सिटी वाले बहुत हो गए अभी। सॉरी। यूट्यूब यूनिवर्सिटी में बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत नॉलेज मिल गया ऐसा। करेक्ट। तो उसी को हैंडल अभी करने के जेन लिए जी का बहुत हो गया है। क्या बोल रहे हैं सर? जेन जी का बहुत हो गया है, उनका ट्रेडिंग का भैया अकाउंट है, ट्रेडिंग जेनजी, अकाउंट। जेनजी हो या मिलेनियल हो सर, ये स्टोरी सबके काम अब आएगा क्या बस है, आप। एक ने ट्रेडिंग किया तो दूसरे ने चालू कर दिया, ऐसा है। तो हम स्टोरी स्टार्ट करें सर? बिल्कुल। थैंक यू। यस नहीं, आपके पेन पॉइंट्स मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपके पेन पॉइंट शेयर करने से स्टोरी शेयर करना उसका सोल्यूशन निकलेगा ऐसा मुझे लगता है। तो लेट अस यस। स्टार्ट विद द स्टोरी। तो आप में से कितने लोगों ने रोलर कोस्टर राइड किया है? यस। किया है? यस। तो क्यों राइड करते हैं सर रोलर कोस्टर? थ्रिल, एडवेंचर। थ्रिल, एडवेंचर, ओके। एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो रोलर कोस्टर यूज करेंगे क्या? नो। मुंबई से दिल्ली आना होगा मुझे तो रोलर कोस्टर में बैठ के आ सकता हूँ? नो। नहीं? ठीक है। तो फिर और ये जो एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट क्यों राइड करते हैं? वी हैव टू रीच अ डेस्टिनेशन अच्छा। तो दो फास्टर। घंटे 2 घंटे एयरक्राफ्ट में बैठेंगे तो वहां पे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ये सब नोटिस करते रहेंगे या नहीं करेंगे? क्या करेंगे? नो, पायलट वी को विल पूछते रहेंगे कहाँ तक आ गए, कहाँ तक आ गए, ऐसा कुछ?
हाँ, we will not notice. It will be peaceful. है ना? तो सेम स्टोरी इज विथ योर ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग जो है इट इज लाइक अ रोलर कोस्टर, मतलब ये आपको थ्रिल तो बहुत देगा, लेकिन आप पहुंचोगे कहीं नहीं। आप अगर ट्रेडर्स के एनुअल स्टेटमेंट्स देखोगे तो 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 इस टाइप के या तो गेन्स बनाए होंगे या लॉसेस बनाए होंगे, है ना? दे विल नॉट रीच एनीवेयर, दे इट विल नॉट क्रिएट अ मीनिंगफुल वेल्थ फॉर देम। वेयर एज अगर वो एक एयरक्राफ्ट लेते हैं, जब आप एक एयरक्राफ्ट में बैठते हो और आपका 2 घंटे का जर्नी है, तो 2 घंटा क्या करते हो आप? We can read, we can listen to audiobooks, we can sleep also sometimes. है ना? यू गेट बिजी विथ योर ओन वर्क, है ना? हम्म यू डोंट बॉदर अबाउट द जर्नी कि जर्नी कैसा हो रहा है मेरे। सेम वे जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो सकता है आपको जर्नी बोरिंग लगे, अरे यार ये तो ऊपर बहुत स्लो स्लो बढ़ रहा है, ये हो रहा है, तो आप देखो मत ना भाई, आप अपना काम करो। इफ यू आर डूइंग अ जॉब, प्लीज फोकस ऑन योर जॉब। इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, प्लीज फोकस ऑन योर बिजनेस। लेट द वेल्थ क्रिएशन हैपन इन द हाइंडसाइट, है ना? उसको बैकग्राउंड में होने दीजिए। तो हम्म देन एंड ओनली देन ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज लाइक बोर्डिंग एन एयरक्राफ्ट, जो आपको किसी मंजिल तक पहुंचाएगी। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग है इट इज लाइक अ रोलर कोस्टर, आपको थ्रिल दे सकता है, एक्साइटमेंट दे सकता है, बट इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर। तो जब इस टाइप का स्टोरी आप उनके साथ शेयर करते हो, दे रियलाइज कि वाई ट्रेडिंग से, और ये आप उनसे खुद से शेयर कर सकते हो। अगर आप किसी को पूछोगे, ये एक सवाल बहुत कॉमनली आता है, आपको ऑडियंस में एक बंदा होगा जो बोलेगा सर मैंने एक स्टॉक लिया था जो जिसमें मेरा 100 रुपए का 150 रुपए हो गया। ठीक है, बताते हैं इस टाइप की स्टोरीज आपके आईपी में? Yes, and they will also give the example of other people how much Yes, they yes. have gained. करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो अगर अदर का देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जब अदर का एग्जांपल देते हैं तो एक सवाल उनसे पूछिए, जनरली एक उनका कोई फ्रेंड या कजिन होता है जिसके एक स्टॉक ने 100 का 150 हो गया होगा। अभी उसको एक सवाल पूछना है कि इज दैट द ओनली स्टॉक इन हिज पोर्टफोलियो और ही हैज इन्वेस्टेड इन मल्टीपल स्टॉक्स? व्हाट वुड बी द आंसर? करीब Yes, 40-50 स्टॉक multiple, होंगे yeah. उसके पास। मल्टीपल, ठीक है। वो ढोल पीट पीट के एक ही स्टॉक की स्टोरी बता रहा है जिसमें 100 का 150 हुआ। क्या बचे हुए जो 9 स्टॉक्स उसने लिए हैं उसकी भी सेम स्टोरी है, कुछ अलग स्टोरी? Yes. बचे हुए जो 9 स्टॉक्स है उसमें किसी का 100 का 110 भी हुआ होगा, किसी में 100 का 95 भी हुआ होगा, किसी में 100 का 50 भी हुआ होगा। वो ये सब स्टोरीज बताता है कि No, कोई नहीं बताता? क्यों नहीं बताता? no bragging. अच्छा कहीं People want to पब्लिक tell about what good happened, like where they are like great, they have done great. So they brag about these things. We only feel comfortable in sharing our success. Yes. Nobody likes to share their failure stories. Yeah. आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आप जीत गए, आप किसको बताएंगे? सबको। पूरी दुनिया को बताएंगे। सबको आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आप हार गए, आप किसको बताएंगे? घर वाले को भी कभी कभी नहीं बताती। किसी को भी नहीं बताते, पार्टिसिपेट किया ये भी नहीं बताते कई बार, है ना? तो सेम वे जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने लॉसेस किसी को नहीं बताते। और ये बात जब आप बोलोगे ना तो वहां आपके ऑडियंस में बैठे बैठे लोग खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि उनके भी बहुत सारे लॉसेस हैं जो किसी को नहीं बताते, है ना? Yes. दे विल अंडरस्टैंड कि ये लॉसेस कोई नहीं बताता है, और एक सक्सेस स्टोरी को ढोल पीट पीट के बता के दे आर शोइंग अ रॉन्ग पिक्चर विच इज नॉट द ट्रू पिक्चर। तो इसीलिए हमें पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी, विच इज कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तभी जाके आपका वेल्थ क्रिएशन होता है, ट्रेडिंग से आपका वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैन गिव यू एक्साइटमेंट बट वोंट अचीव योर गोल्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग विल अचीव योर गोल्स बट द जर्नी वुड बी बोरिंग। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको पैसा कमाना है या एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आइए, और आपको सिर्फ मजे करने हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आइए। चॉइस इज योर्स, ऐसा आप अपने इन्वेस्टर्स को बोल सकते हो। स्टोरी नंबर 5 इज फाइंड माई की। तो अभी जब मैं ये पीपीटी आप लोगों के लिए तैयार कर रहा था और थोड़ा सा सब ये कर रहा था, तो उस चक्कर में मेरी चाबी कहीं गुम गई है। तो आप लोग तो सब बड़े इंटेलिजेंट और टेक सेवी लोग हो, तो जरा गूगल से पूछ के मुझे बताइए कि मेरी चाबी कहाँ रह गई। या आप चाहे तो चैट जीपीटी या एआई, आजकल तो बड़े सब है ना, बड़े बड़े चीजें आपके पास में, तो नो किसी से आंसर, पूछ के बताइए मेरी चाबी कहाँ है। नो आंसर, मिल ही नहीं सकता। सीसीटीवी देख के बता सकते हैं सर, आपका सीसीटीवी देखना पड़ेगा फुटेज। नहीं नहीं, सीसीटीवी वीसीटीवी नहीं मिलेगा सर। गूगल को पूछ लीजिए आप या चैट जीपीटी को पूछ लीजिए और बताइए नो मेरी चाबी। आंसर, नहीं पता चलेगा। लेकिन नहीं सर पता। गूगल और चैट जीपीटी के पास तो सारे आंसर्स होते हैं, ऐसा सुना मैंने।
तो क्यों गूगल या चैट जीपीटी इसका जवाब नहीं दे सकता? व्हेन आई से चैट जीपीटी आई मीन एआई, मतलब मेरे मेरा चैट जीपीटी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं गूगल और एआई की इन जनरल बात कर रहा हूँ कि क्यों इसका जवाब नहीं दे सकते हो? वही वही फिजिकल, जो आपने बोला, ये वो इन फिजिकल जनरली नॉलेज। जवाब दे सकता है, बिल्कुल पर्सनल चीजों का जवाब नहीं दे सकता है वो। फैंटास्टिक। तो सर, चैट जीपीटी और गूगल ये उन्हीं सवालों के जवाब दे सकता है जिनके जवाब किसी ने अपलोड किए हैं, किसी ने डाले हैं। दे आर सर्च इंजिन्स। वो ढूंढ के जवाब दे सकते हैं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग, अगर आप गूगल को पूछेंगे कि आपके दादाजी कौन सी स्कूल गए थे, तो क्या गूगल बता पाएगा? या आपके परदादाजी, ग्रेट ग्रैंडफादर कौन सी स्कूल गए थे, तो बता पाएगा? नो। नहीं। क्योंकि आपके दादाजी ने या परदादाजी ने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं डाली थी, तो वो नहीं बता पाएगा। हाँ, आपकी इंफॉर्मेशन गूगल पे मिल जाएगी, क्योंकि हम हमारी इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ, है ना? तो इसीलिए गूगल सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दे सकता है जो किसी न किसी ने अपलोड किए हैं, और वो कोई ना कोई कौन है वो हम नहीं जानते। तो आज अगर आप पूछते हो विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू गूगल, गूगल वहां से जवाब ढूंढ के लाएगा जो किसी ने अपलोड किए। अब वो कौन कौन है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्या कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो किसी से फंडेड है, जिसके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसको किसी प्लेटफॉर्म ने पैसा दिया है इन 5 फंड्स को प्रमोट करने के लिए? तो ये सब आपको तो नहीं पता चलेगा। तो by giving this example, we actually can tell our clients कि why asking these questions, asking Google for an advice can be a disastrous decision. Why they need to consult you, why they should not consult Google और Chat GPT for investment advice. Why Google का इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं या कहाँ कर सकते हैं? ये लेना सकता है। You can Sorry? find the statistical evidences, but 9182 not that Information. information. Yeah. इंफॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं। जैसे भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रामा रेड्डी सर, आप कौन सी सिटी में रहते हैं? मैं बॉम्बे से हूँ। आप बॉम्बे में ही है, ठीक है, चलिए बॉम्बे का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए देर इज अ डॉक्टर, देर इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट कॉल्ड डॉक्टर जाधव, जो दादर नाम का एक एरिया है बॉम्बे में, वहां पे रहते हैं। अब आपके पास उनका फोन नंबर नहीं है, आप गूगल से जाके पूछोगे कि डॉक्टर जाधव चाइल्ड स्पेशलिस्ट दादर, इनका मुझे फोन नंबर और एड्रेस चाहिए, तो क्या आपको लगता है गूगल से मिल जाएगा? नहीं, if it is not available, it will not show. सो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि मिल जाए, क्योंकि अगर डॉक्टर जाधव ने अपना प्रेजेंस डाल के रखा है गूगल पे, मिल तो मिल जाएगा। जाए। नाउ आपने अपना क्वेश्चन चेंज कर लिया, आपने लिखा बेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट इन दादर। क्या Then जरूरत है कि डॉक्टर जाधव का नाम आएगा? मिल जाएगा दूसरा, क्योंकि दूसरा वाला रेफरेंसेस आ जाएंगे। जरूरी नहीं कि डॉक्टर जाधव का नाम आए, और भी बहुत सारे लोगों के नाम आ सकते हैं, True. ठीक है। अब तीसरा, कोई और महान लोग है जिन्होंने गूगल पे डाला माई चाइल्ड इज हैविंग वोमिटिंग, है ना, विच इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर माई चाइल्ड। अब आपको लगता है गूगल से बहुत बढ़िया आंसर मिलेगा? खोलने लग गया। या मिलेगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है दे मल्टीपल आर डूइंग द आंसर्स राइट मिलेंगे। थिंग? No, we can't get the right answer and we can't trust मल्टीपल आंसर्स Google, मिलेंगे बस। ChatGPT है ना, for क्योंकि all these गूगल को things. नहीं पता है कि आपके बच्चे की हाइट क्या है, वेट क्या है, एज क्या है, ये सब चीजें नहीं पता है, और वो गूगल इतना क्वालिफाइड भी नहीं है कि वो सब चीजें बता पाए। तो गूगल से सवाल पूछने हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड। आप गूगल से पूछना चाहते हो इस फंड का आंसर नहीं एनएवी क्या है, मे बी यू कैन आस्क गूगल। आप गूगल को पूछना चाहते हो इस फंड का लॉन्च डेट क्या है, आप गूगल को पूछ सकते हो। बट अगर आप गूगल से पूछते हो क्या मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज नॉट इंफॉर्मेशन, दैट इज एडवाइस। ये सवाल आप गूगल से नहीं पूछ सकते, और अगर पूछते हो तो एक ट्रस्टेड एडवाइस आपको नहीं मिल सकता। सो दैट इज द मैसेज वी आर ट्राइंग टू गिव बाय दिस स्टोरी, कि गूगल कैन नॉट आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, गूगल कैन आंसर जेनेरिक डेटा एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चंस ओनली। जहां पे पर्सनलाइज एडवाइस और विजडम रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे आपको एक अच्छे एडवाइजर की, एक अच्छे वोलेटिलिटी कोच की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी नंबर 6 के पास। जय एंड वीरू। शोले फिल्म कितने लोगों ने देखी यहाँ पे? सभी ने देखी होगी। सब लोगों ने जरूर। सभी ने देखी, बहुत बढ़िया। बहुत तो फायदा शोले हुआ। में जैसे जय एंड वीरू थे, अभी हमारे वीरू जी जो है ये पिछले हफ्ते मतलब
भगवान के पास चले गए तो, लेकिन मतलब उनको हम उस लोग सभी याद करते ही हैं। तो ये जो जय एंड वीरू है, ये हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जय एंड वीरू हैं। तो इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने साथ में जॉब करना स्टार्ट की और सेम कंपनी में सेम सैलरी पे जॉब स्टार्ट की। तो जय जो था उसने क्या किया कि 21 की एज में ही अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दी। ठीक है, करते गया करते गया करते गया। 27 की एज में जाके जय की शादी हो गई, तो फिर भी उसने अपनी एसआईपी स्टार्ट रखी। 31 की एज में जाके जय वॉज ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। अब जय को लगा यार खर्चे वर्चे बहुत बढ़ गए हैं, अब मैं एसआईपी नहीं कर पाऊंगा, तो उसने अपनी एसआईपी स्टॉप कर दी। तो 10,000 की एसआईपी पानी ला देना। स्टार्ट की एट द एज ऑफ 21, और एक साल में कितना हुआ? 1,20,000। 1,20,000। तो 10 साल में 12 lakhs total. 12 lakhs। तो जय का इन्वेस्टमेंट 12 lakhs हुआ। ठीक है, अब आते हैं वीरू के पास में। तो वीरू जो था, तो वीरू ने 10,000 की एसआईपी थोड़ी लेट स्टार्ट की, क्योंकि 21 की एज में वीरू को लगा यार थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, क्या ये एसआईपी करें। फिर 27 की एज में शादी हो गई, तभी भी नहीं स्टार्ट करी। फिर 31 की एज में जाके जब बच्चा हुआ, तब जाके बीवी ने डंडा मारना शुरू किया कि भाई क्या कर रहा है, अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह स्टार्ट करो। तब जाके वीरू ने अपनी एसआईपी स्टार्ट की। लेकिन जब एसआईपी स्टार्ट की, इसके बाद बंद नहीं की भाई साहब। 31 की एज में जो एसआईपी स्टार्ट की है, कंटिन्यू कर दी 60 की एज तक। तो अभी जय ने अपनी एसआईपी 31 की एज में बंद कर दी थी, जो पैसा था वो इन्वेस्टेड था, और आज 60 हो गए दोनों की एज। जय की सॉरी वीरू की एसआईपी जो थी वो 30 साल तक चली, तो इसका इन्वेस्टमेंट हो गया 36 लैक्स। 10,000 इंटू 12, एक साल का 1,20,000, 10 साल का 12 लाख, 30 साल का 36 लाख। इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्लियर है सबको, है ना? जय ने इन्वेस्ट किए 12 लाख, वीरू ने इन्वेस्ट किए 36 लाख। अभी फिर से अगली स्लाइड पे मैं आपको लेकर जा रहा हूं। अपने एमएफडी वाले अवतार को थोड़ी देर के लिए साइड में रखना है, और अपने इन्वेस्टर वाले अवतार को थोड़ी देर के लिए पहन लेना है, और उसके बाद मुझे बताना है कि इसका आंसर आपके इन्वेस्टर क्या देंगे। तो वीरू ने इन्वेस्ट किए 36 लैक्स, तो इसका कितना रिटायरमेंट अमाउंट हुआ होगा? At 60? तो ये अमाउंट आया करीब 3.5 करोड़ के आसपास। ठीक है, क्या लगता है अच्छा ग्रो हुआ नहीं हुआ? It's good. है ना, 10x ग्रो हो गया। वेरी गुड। Yeah. तो अभी अगर वीरू का 36 लाख का 3.5 करोड़ हुआ है, तो जय का कितना हुआ होगा? नाउ 4 आंसर करोड़ एज योर 4 करोड़ इन्वेस्टर। से आगे 4 करोड़ से आगे। ये देखिए, ये एमएफडी आ गए बाहर हमारे। Much better than Piru. सर आपके इन्वेस्टर ये जवाब देंगे? No. इन्वेस्टर क्या बोलेंगे वो बताइए मुझे। Quite less. कम Only 10 बनाना year है। he has invested. 1 कितना crore बोलेंगे? 1 crore बोलेगा। 1 करोड़। ठीक है, एंड देन यू शो दिस नंबर। क्या लगता है आपके इन्वेस्टर को थोड़ा सा कुछ शॉक शॉकिंग लगेगा? लगेगा, शॉकिंग लगेगा। Yeah. एज फैक्टर मिस किया ना वो। तो कितने परसेंट पे कैलकुलेट किया हुआ सर? सर Same 12%। 13%। 12 12 पे। ओके। ठीक है, अभी यहाँ पे पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं? 10 साल का जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज द मेन एडवांटेज हियर। स्टार्ट हम But पॉइंट here, क्या Start बताना early चाह का रहे हैं? start early and stayed invested for longer period, वो उसका मेन फैंटास्टिक। फैक्टर है। आपके लाइफ के जो पहले 10 साल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके करियर के जो पहले 10 साल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो बहुत सारे Sharab, I want to like this is very great point, and matlab, there is no replacement of time, but generally the people that even I'm getting and most of us are getting a 30 plus. When we actually starting, I used to give this story, but then some of them feel, oh, now I'm 40, there is no benefit. Why should I do? So some story also tell us like where they are late, and we can tell it's not late. ओके, सो दे आर लेट, ये बताना आपको जरूरी है Okay. है ना? सिर्फ इतना बताना पड़ेगा, बेटर लेट देन नेवर। हाँ. Hmm. इट इज ओनली और दैट। मे बी वो 10 साल का जो है ना, SIP शुड बी डबल फॉर एटलीस्ट सम टाइम। उसके बाद थोड़ा कम कर सकते हो। नहीं नहीं, देखिए वो तो आप थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस यू कैन डू, वो क्या करना वो भी मैं बताऊंगा आपको। बट फिलहाल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले 10 साल वो मिस मत कीजिए। और ये जो प्रेजेंटेशन है, जो पीपीटी है, ये हम कई बार करते हैं कॉलेजेस में, फाइनल ईयर के बच्चों के साथ, सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ में।
तो आज उसमें से कई सारे बच्चे अपनी जॉब लगते पहली एसआईपी हमारे साथ चालू करते हैं, क्योंकि वो हम लोग जो बोलते हैं ना जेनजीज आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल या जेनजीज आर वेरी, ये ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है। वी नीड टू गिव देम द राइट एजुकेशन। आप उनको राइट एजुकेशन दीजिए, आप वो आपके पास आएंगे। एंड इफ दिस और जेनजीज के लिए बहुत बुरी न्यूज क्या है मालूम है आपको? आपके और मेरे लिए रिटायरमेंट एज क्या है? हमारे लिए 60 है, उन लोगों है के लिए ना? 40 है। आपके और मेरे लिए जेनजीज रिटायरमेंट एज इज 60, जेनजीज के लिए रिटायरमेंट एज इज नॉट मोर देन 45। 35 40 है 40। 40 भी बोल सकते हो। Yeah. एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट बाय चॉइस। हाँ, इट्स नॉट बाय चॉइस। ऐसा नहीं है कि वो रिटायर होना चाहते हैं 40 पे, उनको होना ही पड़ेगा। क्यों? क्यों होना पड़ेगा? उनके स्किल्स रिडंडेंट हो जाएंगे, उनको रखेगा नहीं कोई नौकरी पे 40 के बाद। इट इज सो डेंजरस। तो हम तो बोलते हैं कि भाई अगर आज आप 21-22 साल के हो ना, ये मत सोचो कि 30 का होऊंगा तब इन्वेस्टमेंट चालू करूंगा, 40 का होऊंगा उसके बाद चालू करूंगा। 40 के बाद तुमको नौकरी पे नहीं रखने वाला है कोई। तो स्टार्ट राइट नाउ, इट इज द अलार्मिंग स्टेज। सो ये सब स्टोरीज आप उनको बीच बीच में बताते रह सकते हो अलॉन्ग विद दिस स्टोरीज। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, एज यू राइटली सेड, स्टार्ट अर्ली। कमिंग टू द लास्ट स्टोरी विच इज द चाइनीज बैम्बू स्टोरी। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने हमने सुनी होगी और यूज भी करते होंगे। तो चाइनीज बैम्बू जो होता है, आप में से किसी ने सुनी चाइनीज बैम्बू की स्टोरी? Yes. ओके, But I'm व्हाट not इज? sure it's the same or different. सेम सेम स्टोरी है। चाइनीज बैम्बू की जब आप मान लीजिए आप एक फार्मर हो जिसने चाइनीज बैम्बू की फार्मिंग स्टार्ट की है, 1 साल हो गया। कितना बड़ा आपका प्लांट चाइनीज बैम्बू का? नथिंग, You कुछ भी नहीं। can't see. फॉर 5 years कुछ नहीं आता कोई ग्रोथ, 5 years के सेकेंड बाद ईयर में कुछ सडनली नहीं, 3 इयर्स कुछ नहीं, 4th ईयर कुछ नहीं, 5th ईयर कुछ नहीं। व्हाट विल बी योर माइंडसेट? 5 साल हो गए, कुछ नहीं दिख रहा है आपको। व्हाट विल बी योर माइंडसेट? एज एन इन्वेस्टर क्या माइंडसेट रहेगा आपका? एज ए फार्मर क्या माइंडसेट रहेगा आपका? वेस्ट है निकाल के फेंको। है ना? एग्जिट यू कर विल देने यू विल गिव अप, यू विल क्विट। और ये बोलते हैं कि 5 साल के बाद में इन लेस देन 90 डेज ये 80 फीट बढ़ जाता है। तो अगर 90 डेज, लेस देन 90 डेज 80 फीट बढ़ सकता था, तो 5 साल तक क्या हो रहा था? वो 5 साल क्यों नहीं बढ़ रहा? स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहा है। सर 5 साल बढ़ रहा था जमीन के नीचे। The 80 roots फीट are होने के getting लिए stronger. नीचे भी तो रूट्स उतने डीप होने चाहिए ना। ये रूट्स बढ़ रहे थे जो आपको नजर नहीं आ रहे थे। और यही चीज होती है हमारे इन्वेस्टमेंट्स में। अगर आप इन्वेस्टमेंट चालू करते हो और पहले 5 साल तक आपको एनएवी में ग्रोथ नहीं दिखता है या एनएवी निगेटिव दिखता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आपके यूनिट्स ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, यू आर एक्यूमुलेटिंग मोर यूनिट्स। तो जब एनएवी बढ़ेगा, आपके पास यूनिट ज्यादा होंगे, तब तो वेल्थ क्रिएट होगा। सो दिस इज द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू टेल कि अगर पहले 5 सालों में आपको लो रिटर्न, नो रिटर्न या निगेटिव रिटर्न्स भी दिखते हैं, डोंट गेट डिसहार्टेंड। ये आपका बेस मजबूत किया जा रहा है ताकि आप आगे वेल्थ क्रिएट कर पाओ। सो दिस वाज अवर लास्ट स्टोरी। एंड टू एक छोटा सा एक्सरसाइज हम लोग कराते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ में, जो कई बार बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है, या इस टाइप के ऑब्जेक्शन आते हैं आपको लोगों के, स्टॉक मार्केट जुआ है। यस उनको भी बहुत स्लाइड दिखाते हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है स्लाइड में आपको? एंड बात तो अच्छा ही है सेंसेक्स का मूवमेंट दिख रहा है सर। सेंसेक्स के मूवमेंट को अगर आप 1-2 साल के लिए देखोगे तो आपका लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको मोर देन 15 ईयर्स के लिए देखते अविनाश हो, को बोलो अपना गामा ट्राई करके लॉगिन करके। आप अपने इन्वेस्टर को बोल सकते हो सर कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लीजिए जो 15 साल दूर है एक दूसरे से। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। लुक एट एनी 2 पॉइंट्स विच आर 15 ईयर्स अवे फ्रॉम ईच अदर। रोलिंग रिटर्न्स। है ना? तो आपको कभी भी लॉस नहीं हुआ है। तो आपको स्टॉक मार्केट जुआ क्यों लगता है? क्योंकि आप उसको जुए की तरह खेलते हो। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह आइए, ये जुआ नहीं है। ये आपके लिए हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स ही क्रिएट करके देगा। सो टू एंड विद सम बॉलीवुड तड़का, सलमान खान की एक मूवी का डायलॉग था, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। हम में से जितने लोग चाहेंगे, अच्छा हम में से कितने लोग हमारे क्लाइंट को पूछते हैं ऑफकोर्स कि अपने रिटायरमेंट में डायलॉग बोलना चाहेंगे?
कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना? क्या लगता है आपको? Our clients would like to have this attitude. तो अगर आपको ये एटीट्यूड रखना है कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, तो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए, नहीं तो आपको लोगों से पैसे मांगने पड़ेंगे, एहसान लेना पड़ेगा लोगों का। When markets are volatile in the short term, टेंशन नहीं लेने का। क्यों नहीं लेने का टेंशन? क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में वोलाटाइल ही रहेंगे। इट इज द नेचर ऑफ द मार्केट्स, है ना। एंड थर्ड इज डोंट इन्वेस्ट ब्लाइंडली। ये जो 25 दिन में पैसा डबल करने वाले होते हैं, ये सिर्फ आपका पैसा लेके भागने वाले लोग होते हैं। वो फिर हेवी हेवी लुट जाते हो आप। तो शॉर्ट टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के पीछे मत भागिए, लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ क्रिएट हम करके दे सकते हैं। और लास्ट ये जो मेरा स्लाइड है, ये मेरा बहुत फेवरेट है, जिसमें हम लोगों को मोटिवेट करते हैं एक्शन लेने के लिए। जो ये जवानी है दीवानी मूवी का डायलॉग है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपने सुन लिया, ज्ञान ले लिया, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। तो प्लीज टेक एक्शन, प्लीज टेक दैट फर्स्ट स्टेप, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रिएट वेल्थ। एंड देन ऑफ कोर्स ये एक स्लाइड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके लिए भी रेलेवेंट है। आप इस टाइप का एक एक्टिविटी अपने क्लाइंट के साथ भी कर सकते हो। तो व्हाट वी रिक्वेस्ट इज कि जो आज का हमारा पीपीटी है, ये आपको मिल सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज आप कोई सेशन कैसा लगा, एक अपना 30 सेकंड्स का वीडियो फीडबैक बना के आप इन 2 नंबर्स में, मेरे टीम मेंबर्स के नंबर है, इन पे आप भेज सकते हो। एंड वी विल सेंड यू दिस पीपीटी एज इट इज। अपना लोगो लगा के आप ये पीपीटी यूज कर सकते हो अपने एडिटिंग्स के साथ में, अपने आईएपीज में। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज ये स्टोरीज हमने क्रिएट ही इसलिए की है कि नेशन वाइड हम फाइनेंशियल एजुकेशन को बहुत सिंप्लीफाई करके स्प्रेड कर पाए। 2 साल पहले मुझे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक अवार्ड दिया था इसके लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक अवार्ड दिया था, टू मेक फाइनेंशियल एजुकेशन सिंपल, फाइनेंशियल एजुकेशन को मासेस तक पहुंचाने के लिए। तो ये हम लोग सिंपल करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट विल ड्राइव आवर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। जितना लोग आसानी से समझेंगे उतना वो आपसे जुड़ेंगे। नाउ ये हो गया आपके लिए एक्टिविटी, जहां पे आप लोग मुझे अपना वीडियो भेज सकते हो। आप अपने क्लाइंट के साथ क्या कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट को तो पीपीटी देकर कोई फायदा नहीं है, क्लाइंट कोई पीपीटी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। व्हाट यू कैन टेल योर क्लाइंट्स, आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि आप यदि मुझे एक अपना फीडबैक वीडियो देते हो, या आप मेरे साथ में एक 30 मिनट्स का फ्री सेशन चाहते हो, देन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर। अपना नंबर छोड़ सकते हो। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग क्लाइंट से अपॉइंटमेंट मांगते हैं। यहां पे आप क्लाइंट को बोल सकते हो यू कैन टेक माई अपॉइंटमेंट, you become that authority, you become that brand, where client is asking for a 30 minute appointment from you। उसको ये लग रहा है मुझे फ्री में कुछ मिल रहा है। आप क्लाइंट से अपॉइंटमेंट ले रहे हो, लेकिन उसको लग रहा है मुझे एक एक्सपर्ट के साथ में 30 मिनट्स शेयरिंग करने के लिए मिल रहा है। सो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू कैन डू विथ योर थिंग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। I will just stop Can you sharing share here. the details like email and other things? Was that slide? Sorry? Can you share that last slide which you were showing? Your email ID and other things are there, no? हाँ, मेरा ईमेल आईडी दिखा दूंगा सर। मेरा ईमेल आईडी लेके क्या करोगे लेकिन आप? No. You just showed that. So Sure. Any questions we all have, we can ask Yes. We are now open for questions. for another few minutes, 3-4 minutes. and now, have you recorded this session, Saurabh ji? I think Kanak ji has recorded. I have not recorded. Yeah, the recording is on. Okay. It will be on FFF channel. Can you share it, please, if you don't mind? It will be shared tomorrow. Okay. Thank you. Once we upload it, we'll share. And Saurabh ji, awesome session. It was really an eye opener for us. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Any questions if we have, I will be very happy to answer. I think during the session आपके कुछ questions जो थे मैं ले नहीं पाया, so sorry for that। लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए मुझे वो थोड़ा
आगे बढ़ना जरूरी था. बट नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस सेशन और आईआईपीज इन जनरल, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट. सर एक How मेरे often को you take these एक sessions? क्वेश्चन है सर कि जी. इफ वी हैव सम वेल्थ प्रोडक्ट, इक्विटी और एक सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स है. ओके, मैं साल में मान लेते इंस्टेड ऑफ पोस्ट टैक्स ही बता रहा हूँ मैं. पोस्ट टैक्स अगर मैं 8% ऑफर करता हूँ एवरी ईयर, एंड इक्विटी भी है, दो अलग अलग प्रोडक्ट है. आप आपकी नॉलेज के हिसाब से या एक्सपीरियंस के हिसाब से विच प्रोडक्ट जनरली क्लाइंट्स विल प्रेफर? सर मैं आपको फिलहाल तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस मतलब आज का जो सेशन था इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो दैट विल बी मच हेल्पफुल, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दिस इज द स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन. इसको मैं है ना अलग से ले लूंगा आपका. बट अगर अभी सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई स्टोरी आपको नहीं समझ में आई है या उसमें आपके नहीं, योर कोई स्टोरी है, सर प्रॉपर्ली अंडरस्टूड सर, वेरी अच्छा, वेरी मच कि जैसे क्लियर आपको है. लगता है कि ये स्टोरी में ये वाला ऑब्जेक्शन आ सकता है, वो उस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो दैट विल बी गुड. नो नो, about the attendance. तो सौरभ आप भी बोल दीजिए, मेरे को भी कुछ उसमें दो कनक जी आपकी आवाज बहुत क्लियरली नहीं आ पा रही, एटलीस्ट मुझे तो नहीं आ रही है. मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों का एक ही सवाल था, आईएपी में अटेंडेंस कैसे लाएं. ओके, सो आईआईपी में अटेंडेंस कैसे लाएं, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर. बट जो मैं करता हूं मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग जनरली आईआईपीज में मतलब वी डू स्मॉलर आईआईपीज ऑल्सो. तो जैसे भी मेरे ऑफिस में मैंने एक ट्रेनिंग रूम बनाया हुआ है जिसका कैपेसिटी 10 लोगों का है, 12 लोगों का है. तो हम लोग 10-10 लोगों के आईआईपीज करते रहते हैं. तो रेगुलरली हम अपने क्लाइंट्स को मैसेज डाल देते हैं कि भाई वी आर डूइंग अ फाइनेंशियल एजुकेशन सेशन, अगर आप आना चाहते हो और अपने किसी फ्रेंड को लाना चाहते हो तो आप लेकर आ सकते हो. तो कुछ कुछ क्लाइंट्स आ जाते हैं, अपने किसी फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को लेके आ जाते हैं, तो 50-50 ऑडियंस हो जाता है. वी गेट 5 मोर लीड्स. तो जैसे मैंने आपको बताया 1 घंटे का एपी है, एक क्लाइंट से मिलूंगा तो भी 1 घंटा मुझे देना ही है. तो उस 1 घंटे में इफ आई एम एबल टू रीच टू 10 पीपल, दैट कुड बी अ गुड आइडिया. इसके अलावा जैसे जैसे आपका अथॉरिटी बिल्ड होता है धीरे धीरे, आप रेगुलरली आईपीज करते हो, जैसे आई गेट इनवाइट्स फ्रॉम नॉट लेस देन, मुझे लगता है साल के 10 से 12 आईपीज तो मुझे इनविटेशन बेसिस पे मिलते हैं. मतलब सम कॉर्पोरेट्स विल इनवाइट मी और सम ऑर्गेनाइजेशंस विल इनवाइट मी फॉर एन आईपी. तो वहां जाके मैं आईपी करके आ रहा हूँ. तो वहां पे गेटिंग द ऑडियंस इज नॉट माई जॉब देन. वहां पे उनकी जो पब्लिक होती है वो ऑटोमेटिकली अपने को मिल जाती है. तो ये भी आप यू कैन गेट इन टच विथ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस, आप उनसे बात कर सकते हो, कॉर्पोरेट्स में बात कर सकते हो. सो देर आर वेरियस वेज. एंड जो एक चीज जो मैंने नोटिस की कि आईआईपीज में ऑनलाइन आईआईपीज कैन बी अ वेरी गुड आइडिया. कई बार हमको लगता है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि जा जाके बैठेंगे करेंगे. ऑनलाइन भी अगर आप आईपीज करते हो ना, तो पीपल फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम दे कैन डू आईपीज. लुक एट दिस सेशन ओनली. आज अगर हम ये सोचेंगे कि इस सेशन में मुझे लगता है ऑल ओवर द कंट्री से हमारे यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, एंड आई होप वी हैव बीन एबल टू शेयर सम वैल्यू. अगर कनक जी सोचते थे कि नहीं ये सेशन हमको फिजिकल ही करना है, तो शायद पता नहीं कब होता, क्योंकि इतने सारे लोग अलग अलग सिटीज से कब ट्रैवल करेंगे, कब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट अगर हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं तो वी आर एबल टू रीच टू सो मेनी पीपल. तो ऑनलाइन आईपीज भी आप कर सकते हो. देर विल बी नो जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन. 10 लोग आने दीजिए, 15 लोग आने दीजिए, 20 लोग आने दीजिए. आपका 1 घंटे में इवन इफ यू आर एबल टू रीच टू 5 पीपल, आई थिंक इट्स अ गुड नंबर. I would like to add something to this as far as attendance is concerned. बहुत बार क्या होता है ना, जैसे कॉर्पोरेट एंड सोशल ग्रुप्स तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज वन शुड डू एंड ट्राई टू. बट उन ग्रुप्स में भी ना लोगों को बुलाना इजी नहीं होता है. तो आप लोगों को ना कई बार आईएपी को जैसे हम लोग गेम्स के रूप पे यूज करते हैं, आई थिंक सौरभ इज आल्सो यूजिंग एंड मेनी ऑफ अस आर. यू कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ कंपटीशन. जब हम लोग जैसे है ना क्रिकेट कराते हैं या कुछ कंपटीशन करा देते हैं ना स्कूल में हो या बच्चों के संग, देन पीपल कम because they know that something is going to happen where they will have fun and they will enjoy. Or if let's say if you are in a complex where there are 4 towers, तो आप बोलिए 4 towers के बीच में competition होने वाला है financial wellness का, wherein you will learn and you will play and the winning tower will be something like that. So whenever you create something which is relevant and related to know people competing with each other, they learn a lot and there is a एक गेमिफाई हो जाता है और एंगेजमेंट बढ़ जाता है. सो आप कुछ भी करके है ना उसको एक हम लोगों ने तो जैसे रिलेशनशिप मैनेजर्स का भी रियलिटी गेम शो कर दिया,
फाइनेंस का भी गेम, रियलिटी गेम शो कर दिया। तो आप जो भी चीज थोड़ा सा उसको ऐसे करोगे ना, तो यू विल हैव टू कंटिन्यू टू क्रिएट इनोवेटिव आइडियाज, एंड आई थिंक दिस वे इट कैन रियली वर्क वेल। You will have to think on those lines. That can be with any age group, any type of people. That will help. Good. I think thank you so much. The recording will be shared, and we all, I think all of you are in some or other group with FFF, whatever cities you are based out in. If not, you can share your details. I will share my number also. Or you can share anything. Most of you have that. So with this, thank you so much. यहाँ पे अभी दीपक रेलिया है दिल्ली से, आज उनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे दीपक। तो हैप्पी बर्थडे दीपक जी। आपके बर्थडे के दिन भी आप सेशन सुन रहे हैं, ये सुन के तो मुझे और भी खुशी हुई। दीपक गायब हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है। So anyways, कनक जी, is there any WhatsApp ग्रुप का जो MFDs का है, ग्रुप लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि हम लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं? कहाँ से आप, विच सिटी? बॉम्बे। Okay, so Saurabh, you can add him in our FFF Bombay group. Sure. You are an admin there. I'll do that. You have Mr. Rama's number? No, I don't have. I just shared, sir. Okay. मिला? रमा, आप नहीं तो ये कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर शेयर किया। यू जस्ट राइट अ हाई मैसेज, वी विल ऐड यू इन द ग्रुप। ठीक है सर। Or anyone else also, if you think you want, you can just write your number, we will add you. Better if you write the name of the city also. Yes, Jairaj ji, there was some question. Hello, good. So with this, we conclude today's session.